So today we are going to do chapter 5, and since it is from 1 to 14, I hope we can complete it. आज जो है हम 5वां अध्याय का पहले वचन से 14 वचन तक का अध्ययन करेंगे। So in last chapter 4, we rather in Hebrews chapter 2 and chapter 4, we read about Jesus as a high priest. हमने दूसरे अध्याय और चौथे अध्याय में यीशु मसीह का हमारे महायाजक होने के बारे में हमने अध्ययन किया। So Hebrews chapter 2 verse 17 it says, और इब्रानियों का दूसरा अध्याय उसका 17 वचन में ऐसे लिखा है, says, therefore he had to be made like his brethren in all things, that he might become a merciful and faithful high priest in the things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। Again in Hebrews chapter 4 verse 15 and 16, again we read about Jesus as a high priest. और चौथे अध्याय के 15 और 16 वचन में भी हम यीशु मसीह का हमारा महायाजक होने के बारे में हम पढ़ते हैं। Now about Jesus as a high priest is only mentioned in Hebrews. So we must be understand these things carefully. ये जो महायाजक यीशु मसीह का होने का सिर्फ इब्रानियों के पुस्तक में लिखा गया है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में अच्छी तरह समझ पाएं। So Hebrews chapter 4 verse 15 and 16 says, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Let us therefore draw near with confidence to the throne of grace, that we may receive mercy and may find grace to help in time of need. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांधकर चले, कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। So here these verses speak about Jesus being a high priest and a merciful and faithful high priest. और हम यहाँ पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए एक सहानुभूति रखने वाले और हमें समझने वाले महायाजक हैं। For that it says he had to be made like his brethren in all things. इस बात के लिए हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को हमारे जैसे बनाया गया। And so Jesus was made like us in all things, and he became a offering or a propitiation for our sins. यीशु मसीह हमारे जैसे बनाए गए और वो हमारे लिए हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए वो चढ़ाए गए। That was the first thing. वो पहली बात है। The second thing is that he was tempted like us, so that he can help us in our temptations. और दूसरी बात ये है कि वो हमारे जैसे परखे गए कि वो हमारी सहायता कर सके। So this is our high priest Jesus Christ. ये है हमारा जो महायाजक है यीशु मसीह। Now we read about the high priest from the Levitical order in chapter 5. और लेवी व्यवस्था के अनुसार जो महायाजक है उनके बारे में हम 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। So this is the Old Testament high priest. ये जो है पुराने नियम का जो महायाजक है उसके बारे में लिखा है। Yeah, and now what is the function of the high priest? The function of the high priest is to bring people nearer to God. और जो महायाजक है उनका काम क्या होता है, उनका जो जिम्मेदारी है कि वो लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आए। How does he do that? By offering gifts and sacrifices for the sins. और वो कैसे करते हैं उसे? भेंट और पाप बलि चढ़ाकर। So it says in verse 1, for every high priest taken from among men is appointed on behalf of men in things pertaining to God to offer both
gifts and sacrifices for sins. क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। Now we see the second verse. It says he can deal gently with the ignorant and misguided, since he himself also is beset with weaknesses. और दूसरे वचन में कहा गया है कि वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। So when the people used to bring the offering and sacrifices, here was a high priest who would understand them because he himself had weaknesses. जब लोग अपने जो है भेंट और पाप बलि लेकर उन्हें चढ़ाने आते थे, तो ये जो महायाजक होता था वो उन्हें समझ सकता था क्योंकि वो खुद भी निर्बल था। And because of that, verse 3 says, and because of it, he is obligated to offer sacrifices for sins for the people and for himself. इसीलिए तीसरे वचन में कहा गया है कि इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। So this was the high priest in the old covenant and in the of the Levitical order. ये जो है पुराने नियम का और लीविया जो गोत्र के जो याजक होते हैं उनके बारे में कहा गया है। And when verse 4 says, even this high priest, he does not appoint himself. और He is appointed by the order of God. और चौथे वचन में कहा गया है कि ये जो याजक है वो भी परमेश्वर के द्वारा ठहराया जाता था, वो खुद को नहीं चुनता था। Yeah. So in the Old Testament, the priests were from the tribe of Levi. जो याजक होते थे वो लीवाय जो गोत्र के होते थे। None of the other tribes could become a priest. और दूसरे गोत्र के लोग जो हैं वो याजक नहीं बन सकते थे। So even this high priest did not come because he just felt like becoming a high priest. No, it was according to a particular God's order. जो महायाजक होता था वो उसने अपने आप को उधर महायाजक नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर के कुछ जो नियम के अनुसार वो बनाया जाता था। So now we see the similarities, some similarities, that this high priest could deal gently because he himself had weaknesses. तो इस प्रकार हम कुछ समानताएं इन जो महायाजक हैं इनमें हम देख सकते हैं कि वो भी जो था क्योंकि उसके निर्बलता के कारण वो लोगों के साथ जो है जो दया से वो लोगों के बारे में वो सोच सकता था। But in the case of our high priest, the high priest Jesus, he came like us in our weaknesses, but he did not commit sin. He overcame. That was the difference between our high priest and the high priest in the Levitical order. लेकिन जो अभी हमारा महायाजक है उसमें और पुराने नियम के समय का जो महायाजक होता था उसमें ये अंतर है कि यीशु मसीह जो है वो परखा तो गया लेकिन वो निष्पाप रहा। So now verse 5 says, so also Christ did not glorify himself to become the high priest, but so even Jesus did not become a high priest according to the order of Melchizedek on his own initiative. तो यहाँ 5वें वचन में हम देखते हैं वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उसे कहा था। So we read these two verses are from which is mentioned here in 5 and 6 is from Psalm 2:7, where it was prophesied many years back. It says, "He said to me, Thou art my son, today I have begotten thee." That is the first one in verse 5. And in Psalm 110, verse 4, David prophesied, "The Lord has sown and will not change his mind. Thou art a priest forever according to the order of Melchizedek." और ये जो 5वां और 6वां वचन है ये भजन संहिता 2 अध्याय और उसका 7वां वचन से लिया गया है,
जहाँ लिखा था यीशु मसीह के बारे में कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और भजन संहिता 110:4. 110 का चौथा वचन, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तू मल्कीसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। So long before Jesus came to earth as a man, it was prophesied that he would become a priest according to the order of Melchizedek. यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के कई साल पहले ही वक्ताओं ने भविष्यवाणी किया था कि यीशु मसीह जो है मल्कीसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक बनकर आएंगे। Now, verse 7 is very important. It says, in the days of his flesh, he offered up both prayers and supplication with loud crying and tears to the one able to save him from death, and he was heard because of his piety. और सातवां वचन बहुत ही महत्व वाला वचन है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। We know from the scriptures, from the Gospels, that Jesus time and again spent time with God. हम जो है वचन से हम जानते हैं कि कई बार जो है यीशु मसीह अपने पिता के साथ वो संगति रखते थे। Whenever he was in Jerusalem, there was a particular place called the Mount of Olives where he would frequently go. जो है जब भी वो यरूशलेम में होते थे तो जो माउंट ऑफ ओलिव्स करके जगह है वहाँ वो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। It says in one place that he spent the night in the Mount of Olives. एक जगह में ऐसे कहा गया है कि पूरा रात उन्होंने उस जगह में समय बिताया। And in Luke 22:39, it says that as it was a custom of Jesus to go to the Mount of Olives. और लूका 22 का 39 में ऐसे लिखा है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। So Jesus, in his prayer, he was offering up prayers and supplication with loud crying and tears to the Heavenly Father. तो यीशु जब भी विनती और प्रार्थना करते थे तब वो ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर अपने पिता से विनती करते थे। Jesus' prayer at Gethsemane was a climax of such a prayer. तो यीशु मसीह ने जो गेत्सेमनी में जो प्रार्थना की वो जो था वो उसका अंतिम जो प्रार्थना था। So it was the last or the climax of many prayers and supplications that he used to do in his life. जो भी उन्होंने निरंतर प्रार्थना और विनती की उसका जो आखिरी जो प्रार्थना था वो गेत्सेमनी के बाद बगीचे में उन्होंने किया। Brothers and sisters, have we had an experience? Can we just take up this saying that have we had an experience of tears in our prayer to God? हमने भी क्या ऐसे अनुभव किया है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। So I believe that is a part of. I'm not saying that there is a scripture saying that we all have to have tears, but when we love somebody, when we love God, and when we hunger for Him, this is a part of our life. जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनके पीछे जो है हम चलना चाहते हैं तो ये जो है एक हमारा अनुभव बन जाएगा। So it says in verse 8, although he was a son,
he learned obedience from the things which he suffered. और 8वें वचन में कहा गया है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी. Although Jesus was the Son of God, he emptied himself, as it says in Philippians, and became like us. यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र थे, उन्होंने अपने आप को जो है खाली कर दिया और मनुष्य के समान वो बन गए. He who gave the command for man to obey had himself to learn the obedience. जिन्होंने मनुष्य को आज्ञा पालन करने के लिए जो नियम दिए थे, उन्हीं को जो है एक आज्ञा पालन करने वाला मनुष्य बनकर उसका पालन करना पड़ा. So in the situations of life, as life comes, there comes whether we will obey or disobey. And Jesus learned obedience from the things that came his way, especially his sufferings. जब हम इस जीवन में अपना समय बिताते हैं, तब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां हमें निश्चय करना पड़ता है कि हम जो आज्ञा दिया गया है उसका हम पालन करेंगे कि नहीं. यही जो है यीशु मसीह को भी करना पड़ा. Bible says when he was reviled, he did not revile in return, but entrusted himself to God. जब लोग उनकी ठट्टा उड़ाते थे, तब उन्होंने वापस जो है ऐसा उत्तर नहीं दिया. He did not judge anybody. Every time he said, "I have come not to judge but to save." जब भी लोगों पर वो न्याय कर सकते थे, उन्होंने न्याय नहीं किया, लेकिन ऐसे बताया कि मैं बचाने आया हूँ, मैं न्याय करने नहीं आया हूँ. The second Adam, that is Jesus, lived the life of obedience, so that जो दूसरा आदम था, उसने एक नियम या आज्ञा पालन करने वाला जीवन उन्होंने बिताया. so that our fellowship with God could be restored, which was lost by the first Adam. जो हमारी परमेश्वर के साथ जो संगति है, वो पुनर्स्थापित हो, इसके लिए उन्होंने ये पूरा किया. Verse 9 says, and having been made perfect, because he did not commit a single sin in anything in his life, he was made perfect as a man. क्योंकि उन्होंने एक भी पाप नहीं किया, वो निष्पाप थे, इसीलिए यहाँ 9वें वचन में लिखा है कि वो सिद्ध बन गए. And he became to all those who obey him the source of eternal life. Anybody who wants to, who believes in Christ and follows him, receives eternal life. और अपनी सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया. Verse 10 says, and he was designated by God as a high priest according to the order of Melchizedek. और 10वें वचन, और उसे परमेश्वर की ओर से मल्कीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला. So we have a high priest, dear brothers and sisters, in heaven, seated at the right hand of God, Jesus Christ, and his work is to draw us nearer to God. तो भाइयों और बहनों, हमारे लिए जो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ एक ऐसा महायाजक बैठा है जो हमें परमेश्वर के ओर खींचता है. So first of all, because he can sympathize with our weaknesses, he says, "Let us come to the throne of grace boldly with confidence." क्योंकि यीशु मसीह हमारी जो निर्बलताएं हैं उनसे वो सहानुभूति रखते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि हम हियाव बांध कर आए उस सिंहासन के पास. So brothers and sisters, all of us need to come with confidence, as the word of God says, to the throne of grace. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम हियाव बांध कर उस सिंहासन के पास निकट आए. However much we have fallen, हम कितने बार गिर गए पाप में, फिर भी because we have a high priest who was made like us and who can sympathize with us. क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारे जैसे बनाया गया और वो हमारे साथ सहानुभूति रखता है. And there in the throne of grace we receive mercy for our forgiveness of our sins.
और उस सिंहासन के पास जब हम जाते हैं तो हमें दया मिलती है हमारे पापों की क्षमा के लिए। This this forgiveness is uh, getting back in favor with God. और इसका ये मतलब हुआ कि हम हमारा जो परमेश्वर के साथ संगति है वो पुनर्स्थापित हो जाता है। Such a wonderful thing that we are back in favor with God because कि when we receive mercy from God. तो हमारा जो है परमेश्वर के साथ वो जो संबंध है वो पुनर्स्थापित हो जाता है। And then we also will get grace for our time of need, for a timely help for our situation. और हम अपनी जो परिस्थितियों के लिए अपने अनुग्रह पा सकते हैं। So this is the beginning. This our high priest is enabling us to have a prayer life where we can receive mercy and find grace to help in our time of need. और ऐसे हम देखते हैं कि जो महायाजक है वो हमारी सहायता करता है कि हम उस प्रार्थना में बने रहें कि हमें जो है वो दया और अनुग्रह प्राप्त हो। But he does not say that is the end of it. और लेकिन वो ऐसा नहीं कहते कि इससे सब कुछ पूरा हो गया। He wants us to enter into the most holy place and live there. और वो चाहते हैं कि हम उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करें और हम उधर स्थिर रहें। He has entered and he is asking us to enter and be with him and live in that place. और वो कहते हैं कि हम भी उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करें और हम उधर हमारा जो है संगति बनाए रखें। So that is a place of fellowship with God. तो वो ऐसी जगह है जहाँ हम परमेश्वर के साथ संगति में हमेशा रहते हैं। That is the reason that Jesus came. इसी कारण ये कारण है जो यीशु मसीह इस दुनिया में आए। That was the privilege of Adam, the first Adam. जो आदम था उसका यही जो उसका जो वो अनुग्रह उसे मिला था। So now Jesus has given us the same wonderful grace of living in the most holy place. तो ये जो बात यीशु मसीह के द्वारा हम भी उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर वहाँ हम संगति में परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। So we have come to 10 and I think 11 to 14 will take some more time. So we can do it next time. Perhaps we can all share on what has been shared so far. और 10वें वचन तक हमने आज अध्ययन किया है और 11 से 14 हम आगे अगले हफ्ते करेंगे। So we have seen here about Jesus as our high priest. और यहाँ हमने यीशु मसीह को अपने महायाजक के रूप में देखा। We have seen his life, how he lived when he was on the earth. और हमने देखा कि उन्होंने अपना जीवन कैसे इधर इस दुनिया में व्यतीत किया। And right now he's a high priest in heaven. और वो आज जो है हमारे लिए महायाजक बनकर स्वर्ग में है। And verse 11 says actually concerning this Jesus, who is a high priest according to the order of Melchizedek, we have much to say, but it is very difficult to explain. और 11वें वचन में कहा गया है कि इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। Yeah, we know about Jesus when he was on earth and when he made a sacrifice, but about Jesus, who is a high priest in heaven, we do not know much. हम उस यीशु मसीह के बारे में जानते हैं जो इस दुनिया में आए और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए वो मारे गए। उस यीशु मसीह को तो हम जानते हैं, लेकिन आज जो यीशु मसीह स्वर्ग में महायाजक बनकर हैं उनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। So brothers and sisters, may God open our eyes and may God give us a hunger and desire to know more and more about Jesus. ऐसे परमेश्वर हमें एक ऐसा प्यास और भूख दे कि हम इस यीशु मसीह को और ज़्यादा जान पाएं।
The Apostle Paul said, I want to know him in the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. और प्रेरित पौलुस ने ऐसे कहा कि मैं यीशु मसीह को और जानना चाहता हूँ और उनकी जो पुनरुत्थान की शक्ति है उसे भी मैं जानना चाहता हूँ. Brothers and sisters, the Bible says, blessed are those who hunger and thirst after righteousness. और ऐसे कहा गया है कि वचन में कि धन्य है वे जो धर्म के लिए प्यासे और भूखे हैं. So may God help us to really hunger and thirst after righteousness and to hunger after God more and more in our life. और परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम ऐसे ही भूखे और प्यासे हों उन्हें जानने के लिए. Yeah, so one thing that touched my heart while I was reading this is written in verse 9 that Jesus became a source of eternal salvation to all those who obey him. जो नवे वचन में लिखा है कि अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया. ये बात जो है मेरे दिल को छुआ. Even though these portions I've read so many times, when you read again, something new touches us. That is the wonder and greatness of God's word. ये जो भाग है ये मैंने कई बार पढ़ा है. फिर भी जब भी हम बार-बार वचन को पढ़ते हैं तो हमें छू जाता है. ये एक बहुत अद्भुत बात है परमेश्वर के वचन के बारे में. I was thinking that how Jesus became a source of eternal salvation to all, and how can I become a source of help to other people. तो मैं ऐसे सोच रहा था कि यीशु मसीह कैसे जो उद्धार का कारण हो गए, वैसे ही मैं भी दूसरों के लिए उनके जो उद्धार में मैं कैसे एक सहायक बनूं. It's written that in the days of his flesh, that is all through his life, this was the pattern of his life, that there was this prayer and supplication with cries and tears because he wanted to be saved from sin. तो हम 7वें वचन में देखते हैं कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब वो इस दुनिया में जी रहे थे, यही तरीका था उनका इस दुनिया में जीने का. He came with a flesh just like ours. So he was tempted and he had to cry to the Lord for help. तो हमारे जैसे वो भी एक देहधारी बनकर इस दुनिया में आए, इसीलिए जब उनकी परीक्षा होती थी तो उन्हें भी परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ता था कि वो उन्हें सहायता मिले. And in verse 8 is written, he learned obedience by the things in which he suffered. 8वें वचन में लिखा है कि उन्होंने आज्ञा मानी दुख उठा कर. See, we all go through different sufferings in our own life. हम सब जो हैं हमें दुख उठाना पड़ता है. Sometimes it can be misunderstanding, sometimes it can be humiliation. कभी ऐसा हो सकता है कि लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं, या जो है कुछ गलत हो जाती है और हमारा जो है अपमान हो जाता है. Sometimes we think some people will help us, they ignore us and they snub us and so many things like that. तो कई बार हम सोचते हैं कि कोई हमारा मदद करेगा और हम देखते हैं कि वो हमारे बारे में सोचते नहीं. And it's through these sufferings that I've learned obedience. तो इन जो कष्ट उठाने से हमें
हम आज्ञा मानना सीखते हैं। And Jesus became, as verse 9 says, he became perfect through the suffering. और जैसे 9वें वचन में लिखा है कि वो सिद्ध बने और वो कष्ट उठाकर वो सिद्ध बने। That means he passed the test. इसका ये मतलब हुआ कि वो जो परीक्षा थी उसमें वो सफल हो गए। And that is the way for me also. तो यही मेरा भी रास्ता है। Then I can also, just like Jesus, become a source of help to other people. तभी मैं भी दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकूंगा। With our words, when we try to help, it's just theory that will not help others. जब हम अपने जो शब्दों के द्वारा दूसरों का मदद करना चाहते हैं तो वो एक सीख जैसे ही रह जाता है। But when we go through something, we learn obedience and then we try, God enables us to help others. That is the true help we can give to others. लेकिन जब हम किसी बात का अनुभव कर लेते हैं तब हम दूसरों का भी मदद कर सकते हैं। In John 17 is written, Jesus sanctified himself for our sake. हम जो है यूहन्ना 17 में ऐसे पढ़ते हैं कि यीशु मसीह For our sake he sanctified himself. हाँ, कि उन्होंने अपने आप को पवित्र किया हमारे लिए। So that is the way for each of us to go. तो यही रास्ता है हम हर एक के लिए। That is the thing that really touched my heart as I was reading. तो ये जो बात है, इस बात ने मेरे दिल को छू लिया जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था। Yeah, thank you. And praise be to God for this. परमेश्वर की स्तुति हो इस वचन के लिए। And I feel very excited with this chapter, Hebrew. मुझे बहुत ही उत्तेजना मिलती है इस अध्याय को पढ़ने से। There is so much to learn from it, and the way of God and the way of our own life. तो मुझे इन बातों को पढ़कर अपने जीवन के बारे में और जो परमेश्वर का जो रीति है उसके बारे में मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। As we are speaking about the high priest, as we know now, Jesus is the only chosen high priest of the where he can enter into the holiest and the holiest place whenever he wants to. तो हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चुना एक महायाजक बनने के लिए, और वो ऐसा महायाजक है जो अति पवित्र स्थान में कभी भी जा सकते हैं। According to the Old Testament, the high priest that was chosen could only enter, like as a once in a while, where he had to do some kind of sacrifice. जो पुराने नियम में जो महायाजक होता था वो सिर्फ एक ही बार जो है वहाँ जो अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था जब उन्हें कोई बलि चढ़ाना होता है। But God decided to do a different thing by offering his own son as a sacrifice to put an end to the law that was given, so that this sacrifice was once for all. लेकिन परमेश्वर ने निश्चय किया कि वो ऐसा एक अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजकर ऐसा एक जो पुराना नियम था उसे बदलकर उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया कि जो उनका पुत्र जो है वो एक महायाजक बन गया। We read from Hebrews chapter 7 verse 27 and 28 also. It says, जो है इब्रानियों 7 का 27 और 28 वचन में पढ़ते हैं।
It says he has no need, like those high priests, to offer sacrifice daily, first for his own sin and then for those of the people, since he did this once for all when he offered up himself. Now, this is speaking about Jesus. और 27 वचन में यीशु मसीह के बारे में ऐसे लिखा है कि उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। And in 20 it says, because for the law appointed men in their weakness as high priest, but the word of the oath which came later than the law appointed a son who has been made perfect forever. और 28 वचन में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। To get a better clearance for these two verses, I want to read from Romans 8, chapter 3 and 4. इसको हम और अच्छी तरह समझने के लिए मैं रोमियों का 8वां अध्याय और उसका 3रा और 4था वचन पढ़ना चाहता हूँ। Because in 3 says, for God had done what the law weakened by the flesh could not do by sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin, he condemned sin in the flesh. और 3रा वचन 8 का 3रा वचन, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। And in 4 it says, verse 4, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walks not according to the flesh, but according to the Spirit. और 4था वचन, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। It is highlighting this is the righteousness requirement might be fulfilled in us. यहाँ इस पर प्रकाश डाला गया है कि जो व्यवस्था की विधि है वो हम में कैसे पूरी हो सकती है। And this only happened when Jesus, living in flesh, condemned sin in flesh so that we can live in righteousness by the Spirit. तो ये तभी हो सका जब यीशु मसीह ने जब शरीर में आकर अपने आप को बलिदान किया और पाप बलि होकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो इसीलिए अब हम जो हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये जीवन जी सकते हैं। That's why it says this sacrifice was done once for forever or for all. और इसीलिए कहा गया है कि ये जो बलिदान है वो एक ही बार में पूरा कर दिया गया। And that's the reason why Jesus became the high priest for all of us. इसीलिए जो है यीशु मसीह हम सब के लिए महायाजक बनाए गए। So this is a very good example for us to live like a righteous and the holiest, because Jesus himself in flesh condemns sin in flesh. So I would say, like, we have no excuse, because the Holy Spirit is given to us now, that who can help us, to guide us, to show us the right thing, what God wants in our life. And we need to live not according to the flesh, but according to the Spirit. And this only can happen is through the Spirit of our Lord Jesus Christ. Amen. तो मैं ये कहता हूँ कि
जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर किया कि उन्होंने शरीर में जो है पाप पर दंड की आज्ञा दी, उस कारण आज हम भी जो हैं आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम उस आज्ञा को पूरा करते हैं और हम पाप के अधीन नहीं रहते। एक दो वचन मुझे बहुत प्रकाशन मिला, मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। वो था कि वर्स 2, Hebrews chapter 5 verse 2, संसार में कई बार हमको कमजोरी लोग मिलते हैं या जिनके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धिहीन है, ऐसे लोगों को बहुत लोग धोखा देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ में प्रोत्साहन देता है कि ऐसे लोगों को प्रभु यीशु कितना मदद करने के लिए आगे आता है। आपने कभी सोचा होगा कि अरे, मैंने देखा कि बुद्धिहीन लोगों को बहुत जल्दी लोग धोखा दे देते हैं संसार में। सोचता है कि इसको कुछ भी करेगा तो कुछ ऑपोजिट में हमको कुछ नहीं करने वाला है, ये बुद्धिहीन है, इनके पास ज्ञान नहीं है। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह वैसा नहीं है। ऐसे अज्ञानी लोग और बुद्धिहीन लोग जो कमजोर है, जो रास्ता में भटक चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मदद करने के लिए तो हमेशा तरसता है। ये वचन मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि तो हमारे पास हम सोचेंगे कि मैं बहुत अज्ञानी हूँ, प्रभु यीशु आपको मदद करने के लिए रेडी है। अब सोचेंगे कि मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, प्रभु यीशु आपको मदद करने के लिए तैयार है। देखो 5वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल में जो हाई प्रीस्ट का जो क्वालिफिकेशन होता है 1 to 4 में लिखा गया है, एक हाई प्रीस्ट का क्वालिफिकेशन। और 5 to 10 अगर पढ़ेंगे, इब्रूज चैप्टर 5 to 10 पढ़ेंगे, वो सारा क्वालिफिकेशन यीशु मसीह के अंदर है। एक है 1 से 4 में जो क्वालिफिकेशन चाहिए हाई प्रीस्ट का, वो यीशु मसीह के अंदर है। इसीलिए वो हम सबको मदद कर सकता है यीशु मसीह। और एक चीज मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि वर्स 8 लिखा है कि वर्स 8 में लिखा है कि although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. इसने एक वो कुछ सीखा अपना जीवन में। 8वां वचन में बहुत प्रोत्साहन करने वाली है। हम सोचेंगे कि यीशु मसीह की सीखने की क्या जरूरत थी, वो परफेक्ट परमेश्वर था और परफेक्ट इंसान था, क्या सीखने की क्या जरूरत है। लेकिन 8वां वचन में लिखा है कि वो पुत्र होने के बावजूद भी उसने जो कुछ तकलीफ उठाया उनसे उसने ओबीडियंस सीखा। तो ये मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। तो हम सबको ये वचन प्रोत्साहन कर सकते हैं कि हम कमजोर है कई चीजों में, कई मामले में और कई हालतों में। हम इतना दूसरों जैसा ज्ञानी नहीं है, बुद्धिहीन नहीं है, बुद्धिहीन जैसा है। लेकिन देखिए, जब हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे, प्रभु यीशु हमको हर जगह पे मदद करेगा। और वर्स 9 में एक अच्छा बहुत प्रोत्साहन है। ये सारा सीखने के बावजूद वो एक परिपूर्ण हो गया। वर्स 9 में लिखा है वो परिपूर्ण हो गया। इसीलिए जो कोई उसके बातों पर सुनते हैं और चलते हैं, उन सब के लिए उद्धारकर्ता बन गया। तो ये वचन हम दिल में बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि यीशु मसीह हम सब के लिए मदद करने के लिए। एक वचन में लिखा है कि जब हम गिरता है वो दौड़कर आता है। कई लोग हम गिरते हैं, कई लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे पास दौड़कर आते हैं, हमारा हाथ उठाता है, हमें मदद करता है वापस खड़े होकर चलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड।